Good morning, students. In previous video we have discussed the topic separation of different mixtures, in which we have discussed two mixture. One is miscible and second is immiscible. Immiscible liquids are separated by immiscible liquids are those which do not mix with each other, and these are separated by separating funnel, and these are separated by means of their difference in their densities. In miscible liquids, for miscible liquids we have two methods. One is distillation and second one is fractional distillation. Fractional distillation. The main difference between these two is here is fractionating column is present and here is fractionating column is absent. And second difference, boiling point difference. Distillation is the process in which we separate two miscible liquids having boiling point difference more than 25 Kelvin, and here we separate two miscible liquids having boiling point difference less than 25 Kelvin. For example, here we can give example water and acetone. And fractional distillation, for separation of crude oil products we use fractional distillation. Moreover, for separation of gases, जो होती हैं, gases are also homogeneous mixture which are separated by fractional distillation because they have also boiling point difference less than 25 Kelvin temperature. Today we will discuss a topic that how can we obtain different gases from air. I will show you a diagram. Just try to understand from this diagram. Here is diagram for separation of component of air. Before starting the process, we used to filter the air. Here is filter is present in which air is filtered. Filter means यहाँ पे हमें impurities को remove करते हैं. Then we send the air in air under. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है. अंडर हाई प्रेशर हम क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं. यहाँ पे अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या एनर्जी जो इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हॉट एयर पास हो जाएगी. और यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे. एंड आफ्टर डिक्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पे जब सेपरेटर में आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए ड्राई आइस यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी. और उसके बाद जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो बाकी गैसेज जो होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड लिक्विड एयर जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी. और इसके बाद फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम में अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑल द गैसेस कैन बी सेपरेटेड आउट. वी हैव टू राइट हियर देन if we want oxygen gas, for example you have to separate oxygen gas from mixture of air. The air is compressed by increasing the pressure and is then cooling by decreasing the temperature to get liquid air. The air is allowed to warm up slowly in fractional distillation. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वार्म करेंगे और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ये क्या होंगी, अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस दे विल separated out through fractionating column. This is separation of gases from air. Next topic, very important, that how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample. अगर हमें किसी इम्प्योर सैंपल में से सॉलिड फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उसमें से हमने प्योर सैंपल को ऑब्टेन करना है तो हम कैसे करेंगे. दिस इज
सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, हीट करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है एंड देन इवेपोरेट करना है हमने वाटर को टू गेट सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है उसमें। कवर द सोल्यूशन विद फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? Crystallization is the process to get the pure form of a substance. What is crystallization? What is crystallization? Is the process by which we get the pure form of a substance. We get pure form of a substance. एक क्वेश्चन है that why crystallization is better technique than, ये आंसर तुमने लिखना है, technique than evaporation. You have to compare these processes, क्रिस्टलाइजेशन एंड इवेपोरेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हियर इज डिफरेंस। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। यहाँ पे क्या होता है, जो सॉलिड होता है डिकम्पोज कर जाता है और सम लाइक शुगर मे गेट चर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। क्या हो जाता है वो, अब तुमने जब शुगर को बर्न करते हो तो उसमें क्या हो जाता है, वो चर्ड हो जाती है ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजोल्व इन द सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। अगर हम इवेपोरेशन सिंपल करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। ऑन इवेपोरेशन दिस कंटेमिनेट द सॉलिड, और वो क्या कर देती है, कंटेमिनेट करती है उस वाटर जिसमें भी वो होगी प्रेजेंट, उसको कंटेमिनेट कर देती हैं। ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। सो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमने इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में किसी एक टेक्निक को चूज करना है देन वी डेफिनेटली चूज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो इम्प्योरिटीज होती है वो सारी रिमूव हो जाती है, बट इवेपोरेशन जो होता है दैट इज ओनली सरफेस फिनोमिनन, और वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ इवेपोरेशन होगी, वहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं होती हैं। यहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, उसको फिर हीट करेंगे, फिर दोबारा फिल्टर करते हैं। ठीक है, मतलब जब तक इम्प्योरिटीज जो है रिमूव ना हो जाए कम्प्लीटली, हम उसको फिल्टर करते रहते हैं। तो दैट्स वाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक देन evaporation. Now I am going to give you very interesting activity, that is you have to make crystals of alum. अब तुम्हारे पास ये एक्टिविटी गिवन है, तुमने कैसे कैसे प्रोसेस करनी है, तुमने ये एक्टिविटी खुद परफॉर्म करनी है। वेरी इजी एक्टिविटी, इजी हो जाएगी। तुमने मुझे एक्टिविटी सेंड नहीं करनी है, सिर्फ तुमने क्रिस्टल बनाने हैं इसके, ठीक है, और उसको प्रिजर्व करके रखना है। जब भी हमारे स्कूल लगेंगे तुमने मुझे वो क्रिस्टल्स दिखाने हैं। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुम इसको जब भी करना चाहो कर सकते हो, तुम्हारे पास मतलब 1 वीक का टाइम है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।